technical problem. I joined late. Few minutes. I'm sorry for that. I think you all have appeared in the 12th class this year. And in NET, your syllabus is for both from the 11th and 12th. Here the chapters are 22 and here the chapters are 16. So total you have 38 chapters. So immediately after board, what happens? Generally, students remain comfortable, normally comfortable, can able to solve up to 80% questions from 12. But problem remains in the 11th class. Or in 11th class itself, the question arises from where the students should start and why from that part, which I am going to tell you. Just you feel and think yourself and give reply, then I will start. Are you people are comfortable in the whole mechanism of photosynthesis? Feel your, write your comment quickly. If a student is comfortable, then I will ask the question also. What about the respiration? Now we tell about the respiration, cellular respiration. Comment. Yes, right, you are right. The student here, Raven Uruz, is very right. Problem arises from the 11th and in general, as well as in physiology. The actual reason is that now I am going to start first. See, in genetics, you know, there is a DNA. In genetics, we have to study about DNA. If the student don't know this chemistry, which in 12th class given on page number 96, 97, it is also given in the 11th class, page number 144, 145, 151 are the same. Right? To know the nucleic acids properly, carbohydrates concept is also required. They are linked. So as we know, we all are in our systems are made up of chemicals. We are not, now I'm going to start. Listen carefully. We all living systems are ultimately made up of chemicals. They are collectively called biomolecules, which I have studied also in the chemistry. But its concept is given in the 11th. Any of you can tell me which type of carbohydrate present in the nucleic acid? Any student, come on. And my question is, which carbohydrate present in nucleic acid? That is DNA or RNA? Any student, come on. No answer. What, there is a monosaccharide also there in the DNA, that is pentose sugar. So it is quite obvious to know genetics, you have to know the DNA. To know the DNA, you have to know the carbohydrates. Second thing, if we don't know the carbohydrate, we cannot understand photosynthesis in detail. When we cannot understand the molecular, the respiration, internal respiration, glycolysis, Krebs cycle. Because in the NEET, they will not ask how this glucose converts into pyruvic acid. Conceptual question will be right. So it is imperative to first take the concept of biomolecules,
then automatically your so many chapters will come under your command. Right. Now I am going to start. Check if you feel any difficulty, please keep writing. So in biomolecules, first and foremost, you need concept of carbohydrate. The concept of carbohydrate is required in photosynthesis, in respiration, in digestion, in nucleic acid, everywhere. When I will start, then I will correlate that how it is related. Just I told you which type of carbohydrate is present in DNA or RNA, no answer. But it is not beyond your syllabus. It is in your syllabus, it is hidden. After completion of this, you can grab so many chapters automatically. See, let me start. First, I think now, if you have a book copy, you start going through this. As the name indicates, carbohydrate. So you all have studied. Its definition is polyhydroxy aldehyde or ketone made up of carbon, hydrogen, and oxygen. This is the definition I have written, carbohydrate. This word has come from the two words, hydrates of carbon, that I will explain. First definition. See here, definition is polyhydroxy. Poly means many. Poly means many. Hydroxy means OH. You all know the aldehyde is CHO and ketone is this one. So to be a carbohydrate, it is very essential that the combination of carbon, hydrogen, oxygen in such a way that it must consist of either aldehyde or ketone and many OH. Then it will be carbohydrate. Simply all of you know, just I'm going to remind you, there are so many compounds which are made up of carbon, hydrogen, and oxygen, but not carbohydrate. So if you have noted the definition, please write down yes. If you have written the definition, you write yes. I repeat, carbohydrates are polyhydroxy, okay, aldehyde or ketone. This is the definition. Even it now say, you know, you all are aware with this acetic acid. See here, it is also made up of carbon, hydrogen, oxygen, but it is not a carbohydrate, it is a fatty acid because it is not fulfilling the condition polyhydroxy, aldehyde or ketone. C2H5COOH. These are not the carbohydrate, rather it is a fatty acid. I repeat, to be a carbohydrate essential that has either aldehyde or ketone, many OH. Okay, now classify it. It will take little bit more class then, and you will become more comfortable in 4 or 5 chapters. और मैं आपको बता दूं, रट्टे लगाने की कोई कोशिश नहीं करेंगे कहीं भी. Just you have to understand. बायोलॉजी लोग सोचते हैं रट्टे लगाना है, रट्टे नहीं लगाना. It is a combination of chemistry, physics, everything. You have to understand. A photo, for example, photosynthesis you start. It is half physics, half chemistry. जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैप्चर नहीं हो रहा, that parts is physics. और आफ्टर दैट रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट हो. धीरे धीरे बात करेंगे. पहले बेटा कार्बोहाइड्रेट करो आप, इसमें घबराना नहीं. अब क्लासिफिकेशन कार्बो
हाइड्रेट। हम ऑब्जेक्टिव भी साथ के साथ कराते चले जाएंगे आपको। क्लासिफिकेशन, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। You might have heard the name of oligo. We're not using oligo, but I will tell you. A weird definition. Mono means one. Saccharide means sugar. Saccharide means sugar. First you write the definition, then I will tell you. Compounds which on hydrolysis do not produce carbohydrate. अब come on the examples. देखो, compounds which on hydrolysis. Hydrolysis means hydro means water, lysis means break. ऐसे कंपाउंड जिसको ब्रेक करे बाय एडिंग वाटर, तो आपको कार्बोहाइड्रेट ना मिले, दैट इज मोनोसैकेराइड्स। अब देखो इसके एग्जांपल में यदि मैं आऊं तो ऑल ऑफ यू नो रिस्पिरेशन होती है तो यहाँ लिखते हो C6H12O6 प्लस 6O2 इज इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O। ये हाइड्रोलिसिस हो गई इनकी, टूट गए, नहीं मिला आपको। इसके एग्जाम्पल लिखिए यहाँ जिसका काम होगा अभी हमको। लिखो राइबोज, यहाँ लिखिए राइबुलोज, यहाँ लिखिए ग्लूकोज, यहाँ फोर्थ फ्रक्टोज। अब आपको पहले मैं और भी लिखता हूँ, पहले आपको रिकॉल कराऊं ये कहाँ कहाँ आएगा आपको। राइबोज, अब सारे बच्चे नाम जानते होंगे, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये शुगर, ये शुगर आपको इसका काम हमको पड़ेगा न्यूक्लिक एसिड में। इसके बिना न्यूक्लिक एसिड नहीं होते। और राइबुलोज, एक बच्चे ने कहा था फोटोसिंथेसिस में, तो ये बताएंगे वो बच्चे जो मैं चैप्टर बता दिया, जो फोटोसिंथेसिस में राइबुलोज कहाँ पर है। लाइस बेटा पूछ रहे हैं, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। आप बच्चे लिख लो, हाइड्रोलाइसिस ब्रेक डाउन बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल। जैसे हमारी जितनी डाइजेस्टिव प्रोसेस है हाइड्रोलिसिस ही है, वो भी क्लियर होगा इससे। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक, लाइसिस। अब देखो बच्चे, अब यदि मैं इसको ना पढ़ता, ये राइबुलोज आप लिख लो 11th क्लास में 217 पेज पर आपका काम आएगा। CO2 एक्सेप्टर राइबुलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट, इसके बिना वो काम अधूरा होगा। यहाँ लिख लो पेज नंबर, हम फिर बताएंगे कहाँ तक कैसे काम हुई। अब यू नो ग्लूकोज, ग्लूकोज आपकी कई बार आएगा। 11th में आपने ग्लाइकोलाइसिस शुरू करेंगे तो 11th के 229 पर आएगा ग्लाइकोलाइसिस। लैक ऑपेरॉन में आया है गैलेक्टोज और ग्लूकोज, 12th में भी आया है, डाइजेशन में आएगा 11th में। तो ये ग्लूकोज तो कई जगह आएगा। अभी जो लैक ऑपेरॉन आपने पढ़ा होगा, हो सकता है जेनेटिक्स में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो। 12th के पेज नंबर में लिखता हूँ 117, लैक ऑपेरॉन, यहाँ ग्लूकोज आएगा, गैलेक्टोज आएगा, मोनोसैकेराइड। अभी आप इस पर चिंता करना करें, आप लिखते चले तो आप ये हो जाएंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमोलिक्यूल, जिसके बिना हम इस सब चैप्टर में घुस ही नहीं सकते।
बिकॉज इट इज ए कॉम्पिटिशन। ये आपसे 11th-12th की तरह क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मुझे कॉन्सेप्ट चाहिए, रटना नहीं है, रटने नहीं लगाना है बच्चे। तो आज मैं यहाँ तक लिख लिया, अभी और लिखाऊंगा। राइबोज, राइबुलोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज भी आपका फोटोसिंथेसिस में आएगा, आपको ये 229 पर भी आएगा। अब इसमें बच्चे आई थिंक एक और लिखेंगे 5th में, गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज आपका 11th में डाइजेशन में भी आएगा 264 पेज पर, और 12th क्लास में आपको फिर लैकोपेरोन में 117 पढ़ाएगा। आप जस्ट पेज अभी नोट करते जाओ कि कहाँ आएगा, कैसे आएगा वो तो मैं डिस्कस करूंगा। दिस इज द फर्स्ट। तो दिस इज द मोनोसैकेराइड्स। ये यहाँ नोट कर लिया बच्चे, ये सब नो थोड़ा सा लिख लो तो बता देना आप। यस, वेरी गुड। अब मेरे को बेटा मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो आप अपना पूरी शीट पर लिखेंगे। अब डाइसैकेराइड इनको लिखोगे, कार्बोहाइड्रेट्स which on हाइड्रोलाइसिस, फिर आ गया हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूसेस 2 मोनोसैकेराइड्स। पहले लिख ले, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसमें कौन कौन आपको पढ़ना है। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। और मैं ये भी लिख देता हूं कि किसकी जरूरत कहाँ कहाँ पड़ेगी आपको। ये 11th 217 264 अपने आप क्लास के बाद आप खोलेंगे, आपको मिलेगा, हम उस पर आएंगे बात। माल्टोज 11th 262 264 and 262 also. Lactose 11 264 एंड 12th के फिर लैकोपेरॉन में 117 था। जेनेटिक्स आप मिस कर रहे हैं, लैकोपेरॉन उसमें लैक्टोज ही टूटेगा। फिर इनके कंपोनेंट्स क्या है, दैट आई विल टेल यू। अभी आप लिखोगे बच्चे, फिर मैं रिपीट करता हूं। डाइसैकेराइड्स, डाई मीन्स 2, सैकेराइड्स मीन शुगर। तो ये ऐसे है जैसे मान लो एक ब्रिक है, एक ब्रिक, 2 ब्रिक को मैंने सैंड और सीमेंट से जोड़ दिया, उससे अलग किया तो 2 ब्रिक आपको मिले। लाइकवाइज यदि डाइसैकेराइड जब ब्रेक होती है, हाइड्रोलिसिस होती है, तो 2 मोनोसैकेराइड मिलते हैं। तो कंपोनेंट्स जो है वो हम लिखेंगे। तो डेफिनेशन इज कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस 2 मोनोसैकेराइड्स। अब यहाँ हमने एग्जाम्पल लिखा सुक्रोज, यहाँ लिखा माल्टोज, यहाँ लिखा लैक्टोज। इनकी जरूरत कहाँ कहाँ पड़ेगी वो मैं लिख दिया। अब फिर इनके कंपोनेंट में सेकेंड राउंड आऊंगा, इनके कंपोनेंट लिखूंगा। पेज आप जरूर लिखते चलो, जो आपको ये तसल्ली हो जाए पूरी। तो इसके बिना मेरा वो चैप्टर्स में हमको रट्टा लगाना है, और ये होते ही देखेंगे कई पार्ट मेरा ऑटोमेटिक कंट्रोल हो गया। अच्छा बता दूं, सेक्राइड का मतलब शुगर। सुन लो बच्चे स्टोरी। अब सेक्राइड का मतलब शुगर क्यों रखा गया केमिस्ट्री में, सुनिए। क्या है स्टोरी, मैं नहीं बोला। नॉर्मल इन नॉर्मल केसेस सुगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सुगर केन, गन्ना से, और उनकी साइंटिफिक नेम होती है सैकहैरम, जो आपने
ऑलरेडी 12th क्लास में पढ़ा है, सैकहैरम ऑफिसिनेरम। तो उसी सैकहैरम से सैकराइड्स जो है उन्होंने ले लिया वर्ड, तो केमिस्ट्री में लिया गया तो यूज होने लगा। सैकराइड मीन शुगर, सैकराइड मीन शुगर, रीजन उनकी ओरिजिन। आपको ऐसे बहुत सारे लाइन आपको मिलेगा केमिस्ट्री में, मेडिकल साइंस में, कुछ डिजीज के नाम तो डायरेक्ट प्लांट, आई विल टेल यू। तो आई थिंक सैकराइड्स कुछ बच्चे का था, क्लियर हो गया। मतलब सैकराइड का मतलब शुगर, ये पूछा नहीं जाता, फिर भी हमको एक एक कहानी जानना चाहिए। इसको मिटा दो, डाइसैकराइड्स लिख लिया बच्चे ने, ओके। अब बच्चे आओ पॉलीसैकराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स which on hydrolysis produces many monosaccharides। पहले डेफिनेशन लिखो, फिर मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ। आई रिपीट, carbohydrates which on hydrolysis produces many monosaccharides। अब आपकी, मैं यहाँ लिस्ट लिख देता हूँ, बट आप जब 11th क्लास की बुक खोलोगे 148 पेज पर बना हुआ है, यहाँ मैं नाम लिखता हूँ। ये स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इंसुलिन। भैया बच्चे इसको इंसुलिन मत समझ रहे ना, कुछ बच्चे बोलते हैं सर इंसुलिन को आपने इन्यूलिन लिख दिया, इट इज इन्यूलिन नॉट इंसुलिन। एंड काइटिन। अब देखो स्टार्च वर्ड आपका वहां तो आया ही है 11th के 148 पे। जब फोटोसिंथेसिस हो जाती है तो भी ये स्टोर होता है, ये आपका फिर 11th 217 पर भी आएगा स्टार्च, कई जगह आएंगे। ये सेल, यदि सेल, प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, तो इफ यू डोंट नो द केमिस्ट्री ऑफ सेलुलोज, तब तो आप सीधे ऐसे लाइन देखेंगे जिससे हमारा काम नहीं बनता। तो अब बच्चे सिर्फ अभी तक हमने क्या किया, इसको क्लासिफाई कर लिया। अब यहाँ से पहले सिंपल क्वेश्चन डराइव करूं। सब बच्चे ने नोट कर लिया, मैं सामने आऊं बोर्ड के सामने, डन। अब देखो पहला क्वेश्चन यहाँ से, पहले बच्चों वाली क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग, साइड में आप क्वेश्चंस भी जनरेट करते चलो, एक एक स्टेप बढ़ते चलेंगे, एक एक क्वेश्चन बनाते चलेंगे, और ये आप करेंगे तो आपकी केमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल्स का भी क्वेश्चन वहां से सॉल्व हो जाएगा। आप अपना चेक कर लेना, वो नहीं रुकेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड मैन आउट। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप देखो आंसर। भले ये आप ये लिख लिया। अब यहाँ देखो, एक तरह का क्वेश्चन लिखता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड मैन आउट। सुक्रोज, galactose, maltose, and lactose। I think you can give the answer। बच्चे आंसर दो। जैपनीज तो आंसर तो दे दिया, थोड़ा सा, कोई बात नहीं है, थोड़ा स्पेलिंग में गड़बड़ है, कोई बात नहीं।
देखो आंसर अभी क्लियर है, हमने कहा ऑड मैन आउट। तो सुक्रोज इज डाइसेक्राइड, माल्टोज इज डाइसेक्राइड, लैक्टोज इज डाइसेक्राइड, गैलेक्टोज इज मोनोसेक्राइड। ये ऑड मैन आउट हो गया कि नहीं? अभी अब और भी ऑड मैन आउट करूंगा मैं, जितनी पॉलीसेक्राइड्स है उसमें एक मोनोसेक्राइड डाल दूंगा या डाइसेक्राइड डाल दूंगा। तो सिर्फ नेम टाइप से क्वेश्चन आपका यहाँ पर जनरेट होगा। तब आपको देख लेना है जो इसमें कौन सा मोनोसेक्राइड है, कौन सा डाइसेक्राइड है, कौन सा पॉलीसेक्राइड है। एक एग्जांपल दिया, फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूं। देखो अभी हम स्ट्रक्चर में आएंगे, तब आपको बुक खोल पाएंगे, यदि बुक आपके पास होगी तो बना हुआ है। अभी हमने मोनोसेक्राइड में आपको सिर्फ राइबोज, राइबुलोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज इतना ही डाला है, क्योंकि गैलेक्टोज हम बार बार नहीं डालेंगे। तो लैक्टोज इज मेड अप ऑफ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, तो हमारा जेनेटिक्स का लैक ऑफ अराउंड फंसेगा। डाइसेक्राइड अपने सिलेबस के हिसाब से 3 ही लिए हैं, होते बहुत है, दैट इज सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। पॉलीसेक्राइड्स हमने 5 लिए हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इन्युलिन एंड काइटिन। इज इट क्लियर? अब आगे का काम करें। अब आपको थोड़ा सा लग रहा होगा बच्चे ये हम कैसे लिंक होने वाला है, कैसे लिंक होने वाला है डिफरेंट चैप्टर्स। जैसे आप ABCD आलिपेटेजिम ना सीखे तो आगे का सेंटेंस नहीं लिख पाए। इट इज लाइक दैट। आई थिंक यू आर गेटिंग माई वॉइस। किसी बच्चे को आवाज कम सुनाई दे रही है तो हो सकता है उनके सिस्टम में, फातिमा बानो प्लीज चेक योर सिस्टम, प्लीज चेक योर सिस्टम। Here my system is okay। अब फातिमा देखो, अब सुनाई दे रही है आपको? फिर मैं आगे बढ़ूं। Write in the comment box yes or no। I think Fatima is not getting my voice and she has some problem। Uruj, you tell, are you listening my voice? Janpreet, Uruj, any of you? Yes। So there is okay, okay. All are listening my sound audible। सिर्फ फातिमा को okay, okay। Only the problem with the Fatima, it is there's a defect in her system। So I will also request the office to inform the Fatima to correct it। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चे। If you feel any type of difficulty, just you note it down, हम सबको लेके चलो। अब now you take a separate sheet। अब वहां पर हेडिंग लिखना है बच्चे आपको। अब देखो मोनो, डाई और पॉली हमने कर दिया। अब यहाँ लिखता हूँ फिर से, मोनो सैकेराइड। अब एक चीज और गौर करो बच्चे, अब नॉर्मली नॉर्मली द नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड विथ सफिक्स ओज। देखो यदि आप कंपाउंड आपके लिए नया है तो आप उसके देखो उसमें ओज लगा है तो वो कार्बोहाइड्रेट ही है। ASE एज लगा है तो एंजाइम है। अब देखो ओज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज और बहुत सारे ऐसे होंगे जिसका आपको काम नहीं पड़ेगा, थैलोज, गैलोज, ग्लूकोज, बहुत सारे हैं, लेकिन हम पकड़ लेंगे तो ये कार्बोहाइड्रेट। एनीवे अब हम अपने काम का काम करें। अब इट्स जनरल फॉर्मूला फॉर मोनोसेकेराइड, यहाँ लिखेंगे जनरल फॉर्मूला फॉर मोनोसेकेराइड CN। अब यहाँ आपका काम शुरू होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट।
मेरा काम कम होगा। CnH2O whole n, where value of n varies from 3 to 7. The general formula. अब आप एक टेबल बनाओगे और खुद चेक करोगे जो आपकी फॉर्मूला गई, यू कैन मेक ऑल द स्ट्रक्चर्स। यहाँ आ जाए, देखो यहाँ सीरियल नंबर, वैल्यू ऑफ एन, यहाँ जनरल नेम, पहले टेबल बना लो बच्चे। जनरल नेम, एम्पेरिकल फॉर्मूला, एल्डिहाइडिक फॉर्म, और यहाँ कीटोनिक। अब थोड़ा सा हमको टेक्निकली चलना पड़ता है, नहीं तो इसके बिना काम सारा गड़बड़ हो जाता। अब देखो मैंने आपको कहा, इसके बाद काम अब आपका है। मैं यहाँ एक बनाऊंगा और आप कोशिश करोगे, मैं आपको 5 मिनट दूंगा। देखो आपने जो कहीं ना कहीं पढ़ा है कंपाउंड, वो अपने आप बनने लगेगा। कैन क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है, गुड। अब यहाँ देखो बच्चे, सीरियल नंबर हमने क्या कहा बच्चे, जो वैल्यू ऑफ एन वैरीज फ्रॉम 3 to 7। तो सबसे मिनिमम एन की वैल्यू 3 है, तो यहाँ 3 लिखा। तो 3 कार्बन वाले शुगर का नाम क्या होगा? तुम इसमें फिर आपने नाम सुना होगा, मैं बताऊं। लेटिन में 1 2 3 4 5 को बोलते मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा, नोना, डिक्का। तो 3 कार्बन वाला शुगर, तो 3, उसको लेटिन में क्या बोलेंगे? ट्राई। और कार्बोहाइड्रेट है तो उनको उनकी टाइटल लगाना है ना। जैसे मोबिना सराज, मोहम्मद अली, तो ये लगा है टाइटल, तो इनका टाइटल है ओज। यहाँ देखो, तो इनका जनरल नाम हो गया ट्रायोज। 3 कार्बन वाला शुगर ट्रायोज। और इस बेसिस पर CnH2O होलन, यहाँ पर 3 और यहाँ भी 3 वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा? C3H6O3। ये इनका इंपेरिकल फॉर्मूला। अब बच्चे इस एम्पेरिकल से एक समझ लो, उसके बाद अभी आप बनाओगे, मैं आपको 5 मिनट टाइम दूंगा, फिर यहाँ से आप कंफर्म करोगे। इस एम्पेरिकल से तो आप कह नहीं सकते जो एल्डिहाइड है कि कीटोन है। तो आप इसको क्या करोगे? चेन में ब्रेक कर दो। अब फिर बताऊंगा ये कंपाउंड आपके बायोलॉजी में कहाँ है। अब एल्डिहाइड है तो बच्चे एल्डिहाइड तो यहीं पर होगा, एल्डिहाइड लग गया। और पॉलीहाइड्रोक्सी है तो एक से ज्यादा तो OH होना ही है। अब बैलेंसी पूरा करने के लिए H लगाओ, तो देखिए बन गया। ये भी ट्रायोज हुआ विथ एल्डिहाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्डो ट्रायोज। ट्रायोज का मतलब समझ में आ गया था। अब जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तो आगे डॉक्टर लगाएंगे। एल्डिहाइड के साथ ट्रायोज है, अल्डो ट्रायोज। ठीक है, हाँ मैं करते हैं एल्डिहाइड कौन बचेगा, मैं करता हूँ। पहले कौन बनाने दो, कौन बोल रही जन अपने ट्रायोज। अब यहाँ देखो, ए ओ तीन। बच्चे कीटोन जो होगा, कीटोन इस पर फर्स्ट पर नहीं होता। यहाँ देखो 1, यहाँ 1 2 3, 1 2 3। कीटोन होगा हमेशा सेकंड पर। जहां एल्डिहाइड या कीटोन हो उसको छोड़ के सब पर एक एक OH लगानी है, क्योंकि ये है पॉलीहाइड्रोक्सी
और वैलेंसी पूरा करने के लिए H। अब ये ट्रायोज तो हुआ, लेकिन कीटोन के साथ इनका नाम क्या हो जाएगा? केटो ट्रायोज। अब इसको समझा देता हूं, आगे अभी आप बनाओगे फिर कंफर्म करोगे। अब समझो फिर इसको। देखो बच्चा, मैं आपको फिर से शुरू करता हूं। नॉर्मली नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड विद सफिक्स ओज। अच्छा, इंट्रोडक्शन में हमने मोनोसैकेराइड्स की डेफिनेशन लिखी थी, कार्बोहाइड्रेट which on hydrolysis do not produce any carbohydrate। इसको ब्रेक करेंगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, कुछ और बनेगा। इनकी जनरल फॉर्मूला हो गई CnH2 बोले, तो यहां हमने रख दिया N। अब देखो ये कंपाउंड आपको कहाँ कहाँ आई है, आप पकड़ नहीं पा रहे हो। दोनों कंपाउंड आपको बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, सब जगह आई है। अभी आप देखो पकड़ नहीं पा रहे हैं, मैं आपको याद दिलाता हूं। इसके बिना कैसे रिस्पिरेशन होगा और न फोटोसिंथेसिस होगा, ये दोनों जगह अप्लाई आया है। जस्ट वेट करिए। ये दोनों जो मैं बनाया हूँ, ये बता दूं आपको, इट विल कम इन फोटोसिंथेसिस, इट विल कम इन द रेस्पिरेशन। इसके बिना वो दोनों चैप्टर, वैसे एल्डिहाइड कीटोन पर आपका केमिस्ट्री में चैप्टर ही है। सुनो बच्चे, हमने कहा इसका जनरल फार्मूला हो गया CnH2 बोले, तो हमने 3 के लिए लिखा था, यहाँ N लिख दूंगा। यहाँ N और यहाँ N। N की वैल्यू वैरी करेगी 3 to 7। हमने कहा एक टेबल बना दो आप, इसमें यहाँ पर हम सीरियल नंबर लिखेंगे, यहाँ N कितने हैं वो लिखेंगे। N मतलब ये कार्बन का नंबर। इनका तब जनरल नाम क्या होगा, इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो यदि N की वैल्यू आपने 3 लगाया तो इनका जनरल नेम हो गया ट्रायोज। 3 कार्बन वाला सुगर ट्रायोज। 4 वाला होगा टेट्रोज, 5 वाला होगा पेंटोज, 6 वाला होगा हेक्सोज, सब जानते हैं। अब इसको इस फॉर्मूला पे तोड़ा तो N का वैल्यू यहाँ 3 था बच्चे, तो यहाँ पर 3 लिखा, यहाँ 3 लिखेंगे। जब इसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो ये 6, 3। अब ये इंपेरिकल से तो ये पता नहीं चल गया ना जिसमें एल्डिहाइड है या कीटोन है। और ऑल ऑफ यू नो CHO एल्डिहाइड होता है, ये कीटोन होता है। ये तो 9th से पढ़ते आए होंगे आप। ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन छोटे क्लास से पढ़ के आते हैं। अब यहाँ मैंने 3 कार्बन 1 2 3 ब्रेक कर दी। एल्डिहाइड कार्बन नंबर 1 पर होगा, CHO है, ये पूरा एल्डिहाइड हो गया। देखो ये पूरा का पूरा ये एल्डिहाइड हो गया। और सेकंड 2 कार्बन बचे, एक एक को एक तो H लगा दिया। बैलेंस ही पूरा करने के लिए H लगाना है, तो ये एल्डिहाइड के साथ हो गया, इनका नाम हो गया अल्डो ट्रायोज। इसी तरह कीटोन के साथ कीटोन ट्रायोज। ये कीटोन सेकंड पर होगा, यहाँ पर कीटोन है, फर्स्ट पर यदि कीटोन लगा देंगे आप तो बैलेंस ही पूरा ही नहीं होगा। ठीक है जनप्रीत, नाउ इट इज क्लियर। मोसिना, नाउ इट इज क्लियर। ठीक है, तो अब आप वेरी क्लियर। तो आप टेट्रोज पेंटोज तक बच्चे बना लो ना, 5 मिनट में टाइम देता हूँ आपको। मोसिना क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया। तो अब बच्चे अपने से 5 मिनट के अंदर 2 स्ट्रक्चर बनाएंगे। C4 वाला इसी के नीचे, तो उसका नाम आपको बता दिया, मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा ऑक्टा नॉनाटी का। देखो सारे स्ट्रक्चर आपसे बनते हैं नहीं अपने आप, मेरी जरूरत ही नहीं होगी, फिर आप कंपेयर करोगे। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स टू मेक अप टू पेंटोज।
जो बच्चे बना ले पेंटोज तक तो वो लिखेंगे, डिफिकल्टी आएगी तो भी पहले इतना बना लो बच्चे। सलील आपको भी क्लियर हो चुका है, जल्दी बनाओ बच्चे। मोबीना जल्दी बनाओ। मोहसिना बना के बताओ। वेरी गुड। जैपनीत ने कर दिया। गुड। कम ऑन चिल्ड्रन। गुड। अब मिला लो, मैक्सिमम बच्चे ने कर लिया। अच्छा, अब मैं आपको कभी कभी लग रहा होगा सर ज्यादा पढ़ा रहे हैं, सर ज्यादा पढ़ा रहे हैं, तो लगता हो, लेकिन इस पार्ट को यदि मैं ब्रेक ना कर लूं तो मेरा फोटोसिंथेसिस, रिस्पिरेशन, डाइजेशन, न्यूक्लिक एसिड कहीं नहीं कर पाएंगे। तो बच्चे में जैसे आपको प्यार प्यार से आलिफ पेटे जिम रटवाया गया होगा एबीसीडी, वैसे ही टू कमांड द बायोलॉजी 2-3 क्लास में आपका पहले ये कमांड हो जाएगा, उसके बाद हम स्पीड करेंगे। तो आप ये टेंशन लेकर ना चलना, ये थोड़ा सा ये ज्यादा है क्या है, कॉन्सेप्ट के लिए इतना देना पड़ेगा। आई थिंक सबने 12th किया है तो इतनी परेशानी भी नहीं है। आपने बायोमोलिक्यूल्स ही एग्जाम भी दिया है चैप्टर नंबर 14। अब हमारे बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 9 में है, तो जनरली उसको लोग ऊपर ऊपर चले जाते हैं, छोड़ देते हैं। बट एवरीथिंग इज हिडन गिवन देयर। तो नीट में भी पूछेगा और उनका काम मुझे दूसरे जगह भी होगा, तो अपने दिमाग में ये मत रखना कि हम लोग थोड़ा सा इधर उधर, हम लोग टू द पॉइंट ही चल रहे हैं। ये बेस है। अब बच्चे देखो, अल्टो ट्रायल्स हो गया। अब देखो मैं इसका असली नाम भी लिख देता हूँ, जो आपने सुना होगा कई बार। मेरी जगह नहीं है, मैं यहाँ पर लिखा, इसका असली नाम है अल्टो ट्रायोज का। आप लिख लेंगे नीचे ग्लिसरल्डिहाइड। नाम सुना होगा। केटो ट्रायोज का नाम है डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन। अब देखो ये ट्रायोज वर्ड, जब आप 11th फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हो तो 217 में नीचे में लिखा हुआ है ट्रायोज, उलट के देख लोगे आप। तो इसको बिना बताइए ट्रायोज कहाँ से आए। जब हम आप आएंगे ग्लाइकोलिसिस पढ़ने रिस्पिरेशन में, तो देखोगे वहां पर फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोऑक्सीएसीटोन फॉस्फेट में टूट रहा है। तो वहां रट्टे लगाने लगेंगे तो फिर काम गया हमारा, क्वेश्चन ही नहीं बनेगा ग्लाइकोलिसिस। तो ठीक है, हम सबके नाम बताएंगे। अब ये आपकी हो गई। मेरे पास बोर्ड छोटा है, मैं किस जगह बना यहाँ बनाता हूँ उसको। आप लोग कॉपी, इसको मैं इतना रखा हूँ, आप अलग से बनाएंगे। अब देखो, अब यहाँ पर दूसरे नंबर पे आप आ गए, तो आई थिंक आपने बनाया होगा 2 नंबर पे। ये 4 हो गई, तो इनका नाम हो गया टेट्रोज। तो टेट्रोज टेट्राबिस्फोर, ये हो गया C4H8O4। अब यहाँ पर आपने 4 कार्बन कर दो, इसके बदले 1, 2, 3, 4। यहाँ फिर एल्डिहाइड लगा दो, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, और यहाँ पर OHH। अब आपकी समझ में आ गई, तो हम ऐसे लिख सकते हैं केवल CH2OH। अब इसमें 2 पहले वाला मैंने छोड़ दिया, 1, 2, 3, 4। यहाँ पर फिर OH, यहाँ H, एक बार CH2OH।
एच अलग भी कर सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एल्डोटेट्रोज। और ये हो गया केटोटेट्रोज। अब अपना मिला लो आप। ठीक है, कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है, डन। अब हम 5 पे आते हैं। इसकी जरूरत थोड़ी कम पड़ेगी आपकी टेट्रोज की। मेरा मेन काम अब आएगा पहला पेंटोज, तो न्यूक्लिक एसिड में आएगा। तो अभी हम देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसी को यूज करूंगा थोड़ा सा स्ट्रक्चर को, एक एक कार्बन बनाना है। अब यहाँ 5 हुआ तो 5 कार्बन बच्चे हो गए पेंटोज। यहाँ हो गया C5H10O5। अब यहाँ पर क्या, 1 2 3 पहले वाला मैं यूज कर लिया। चल आप नहीं करेंगे, आप अलग से बनाओगे। CH2OH, OH और H। अब ये कंपाउंड क्या आपका हो गया, अल्डो पेंटोज। अब भैया देखो, अल्डो पेंटोज के नाम आप सब जानते हैं। ये कार्बन है, ये कंपाउंड है राइबोज, इसीलिए आरएनए का नाम हो गया राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब रिकॉल करिए जो कैसे न्यूक्लिक एसिड के लिए, पहले ये बात कर लें फिर बता दूंगा। एटीपी का नाम आपने सुना है, उसमें भी यही शुगर है। 1 बाय 1। अब केटोपेंटो 1 2 3, यहाँ 4 और यहाँ 5। अब यहाँ देखो, ये हो गया केटोपेंटो। इन्हीं का नाम है, मैं यहाँ लिखता, इनका नाम यहाँ लिखता हूँ। इनका नाम है राइबुलोज। और ये 217 पर CO2 के एक्सेप्टर है, राइबुलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट। अब आप देखो कैसे कैसे जुड़ रहा है। इसी तरह हेक्सोज, आई थिंक हेक्सोज भी बना लेंगे। अब आप ये होमवर्क में देता हूं मैं, आगे बढ़ एक स्ट्रक्चर बना के फिर अब आप काम अब आपका इजी हो जाएगा। अब आपके वर्क देता हूँ, हेप्टोज छोड़ देना, हेक्सोज तक कॉपी पे बना ले। अब ये क्लियर हो गई आपको, जो ये कंपाउंड अल्डोपेंटोज। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुगर प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड, अल्डोपेंटोज, केटोपेंटोज, अल्डोहेक्सोज, केटोहेक्सोज। तो अल्डोपेंटोज अब कैसे, वो देखते हैं। क्वेश्चन क्यों नहीं होगा, ये बाहर का क्वेश्चन हुआ नहीं। अब मैं एक स्ट्रक्चर पर आता हूँ, फिर आपके पास 11th की बुक है, बोलोगे देखोगे, बन गया 12th में भी है। एनीवे कम ऑन। तो बेटा हेक्सोज तक आप बना लेंगे होमवर्क। अब हम दूसरी पार्ट में आते हैं। नाउ अनदर डिस्कशन। ये हमने अभी चेन बनाई, वो ओपन चेन। हम देखते हैं हाउ दिस ओपन चेन टू reinforce। ओपन चेन रिंग में कैसे आ रही है, इस पर बात करते हैं। टेकिंग द एग्जांपल ऑफ एल्डोपेंटोज। अब यहाँ देखो, 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5। अब यहाँ देखिए, ये था, यहाँ तक स्ट्रक्चर आपने खुद बनाया है। अब देखो, स्टेबल होने के लिए ये ऐसे नहीं रहता। स्टेबल होने के लिए ये रिंग में जाता है। तो रिंग में कैसे जाता है, तो एल्डिहाइड और कीटोन जो है इज रिएक्टिव। एल्डिहाइड कीटोन दोनों रिएक्टिव है। तो ये डबल बॉन्ड के कारण, जिसको आपने केमिस्ट्री में न्यूक्लियोफाइल्स पढ़ा होगा, आपको 12th दे दी है तो यू नो वेरी वेल। 11th में ये कहना मुश्किल होता है न्यूक्लियोफाइल्स। तो बच्चे एक्चुअली यही न्यूक्लियोफाइल्स है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक है।
और जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं समझ रहे हैं वो ऐसे समझे ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये बहुत बदमाश है, इस H को अपनी ओर खींच रहा है। तो सेकेंड स्टेज क्या होगी, 1 2 3 4 5। देखो बच्चे ये अब ठीक से गौर करो, ये H भाग गया है यहाँ, तो जब ये H यहाँ भाग जाएगा तो सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा, इनका एक ये कर लिया। अब इनका ये ऑक्सीजन जो है इनका एक चला गया, तो ऑक्सीजन है टू वैलेंसी जो है, तो एक ये इनसे एक पेरेंट से, जहां थे वहां बना लिया। ये रिएक्शन हुई। फिर मैं और बढ़ देता हूँ, पहले रिएक्शन देखो फिर दोबारा। दिस इट अटैक्स ऑन द सेकेंड लास्ट कार्बन। हो गए यहीं से, क्यों, तो स्टेबल होने के लिए, इससे नहीं होगा, यानी स्टेबल होने के लिए हमें से सेकेंड लास्ट कार्बन के H को खींचता है। ये H यहाँ आ गया, तो यहाँ आ गया तो ऑटोमेटिकली एक इलेक्ट्रॉन से शेयर या हाइड्रोजन किया तो ये बन जाएगा OH। और इस ऑक्सीजन के पास टू वैलेंसी थी, एक इस कार्बन से छूट गया, तो ये ऐसे हो गया। मान लिया 5 बच्चों को खड़ा कर दिया, 4 को ऐसे जोड़ दिया, तो एक एक बाहर है, ये बाहर है। अब इसका जो भी आप भर दो, यहाँ OH H OH H, अब यहाँ H, यहाँ पर CH2OH। अब देखो आप लोगों में से 5 बच्चों को खड़ा कर दिया, 1 2 3 4 5, और उसमें से एक को बीच में खड़ा कर दिया, लाल कपड़ा पहना, ये इसका हैंड पकड़ लिया ऐसे ऐसे, ने कहा भैया चलो भाई राइबोज डांस दिखाओ। आप ऐसे ऐसे घूम रहे हो, ऐसे चारों ओर घूम रहे हैं। इस ऑक्सीजन को घुमा के हमने यहाँ डाल दिया ऊपर, यूं घुमा के ऊपर, तो इसके बाजू में 1 2 3 4 कार्बन, ये 2 ये 3 ये 4, इसको आपने रिंग से बाहर रखा है, CH2OH, ये OH ये H, यहाँ OH ये H, ये OH ये H, ये, तो ये हुआ आपकी राइबोज। और इसको कहाँ देखेंगे आप, 11th क्लास का यदि आपके पास बुक है तो 155 के ऊपर में देखिए ये स्ट्रक्चर बनी है। यहां तक आने में जब तक यह ना समझाओ ये कैसे बनेगा। दूसरा, इस शुगर की इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं बताऊं, ये मैटर समझ में आ गई फातिमा बानो? 5 नंबर, यस 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 यस, ठीक है। कोई भाई किसी को डाउट हो तो कहेंगे, मैं आपको बताऊंगा। ये शुगर प्रेजेंट है RNA में, ये शुगर प्रेजेंट होगा ATP में, यही शुगर प्रेजेंट होगा GTP में जो आगे बताऊंगा, यही शुगर होगा NAD में, यही शुगर होगा FAD में। यहाँ पर लिख लें, जैसे जैसे जब समय आएगा मैं बताऊंगा। ये स्ट्रक्चर बना लो पहले, रेस्ट आपसे बनवाऊंगा। अभी एक चीज और करता हूँ, ठीक है, बच्चे अच्छे से बना रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज, ये आई थिंक ये डायग्राम बन गया आप लोगों का, स्ट्रक्चर कन्वर्जन, गुड। यहां से मिलाऊं, अब इसको मैंने नहीं, इसको अभी नहीं, तो ये ऐसे रहने दिया आपका मैं CH2OH। किसी बच्चे को डाउट हो तो मैं कार्बन का नंबरिंग कर देता हूँ, ये पहला वाला था बच्चा, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। तो RNA का फुल फॉर्म आप क्या करते हो, राइबो न्यूक्लिक एसिड, आप लिखते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये राइबो जो लिखते हैं इसी राइबोज के कारण लिखते हैं आप। और DNA का फुल फॉर्म क्या लिखते हैं, देखो DNA को आप बोल रहे हो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट की जरूरत कितना न्यूक्लिक एसिड में है, ये सेम स्ट्रक्चर है। अब यहाँ OH अब यहाँ जो कार्बन नंबर 2 है वहां पर ये ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ H है।
इसको गौर करिए, कार्बन नंबर 2, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H। तो अब इनका नाम, डीएनए का नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डी का मतलब होता है बच्चा विदाउट, कोई कोई बच्चा डाई बोल देता है। ऑक्सी ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन का राइबोज। तो ये शुगर प्रेजेंट है आरएनए में, ये शुगर प्रेजेंट है डीएनए में। डिफरेंस सिर्फ यहाँ कार्बन नंबर 2 की है, और इसका रेफरेंस, ये स्ट्रक्चर आप नहीं पढ़े तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आप 12th क्लास का यहाँ लिख लो, पेज नंबर 103, नीचे से 3rd पैराग्राफ में जाओगे, लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जो आरएनए इज कैटालिटिकली एक्टिव, डीएनए स्टेबल होता है। डीएनए स्टेबल होने का ये रीजन है, जब तक ये स्ट्रक्चर आप नहीं जानेंगे तो ये मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में यहाँ पर हम कैसे बता पाएंगे आपको। इसको नोट करके रेफरेंस पेज लिखिए, जब हम वहां जेनेटिक्स में आएंगे तो समझ में आ जाएगी आपको ताकि क्या हुआ था। यहाँ ऑक्सीजन नहीं रहने के कारण ये रिएक्टिव कम होता है, डीएनए स्टेबल है। अब देखो यदि व्हिच ऑफ, तो डीएनए में जो शुगर है वो क्या है, एल्डोपेंटोजी है, दोनों एल्डोपेंटोजी। लेकिन जब हम ब्रेक करेंगे तो इनको बोलेंगे राइबोज, इनको बोलेंगे डीऑक्सीराइबोज। और यहाँ पर इंपेरिकल फॉर्मूला थोड़ा सा चल जाएगा, C5H10 वो 4 हो जाएगा क्योंकि एक ऑक्सीजन कम हो गया। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ डीएनए। तो बच्चे अब देखो हमने यहाँ बनाया, ये स्ट्रक्चर आपको बना हुआ है 11th क्लास का 155 पेज में। इन दोनों का कंपैरिजन किया हुआ है 12th में 103 पर। तो विदाउट ये एक के बिना हम कहा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में घुस पाएंगे, 90 की समझ पाएंगे। तो दीज आर द शुगर्स व्हिच इज प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड, एटीपी, एनएडी। केवल डीएनए में डीऑक्सीराइबोज है। ये दोनों शुगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगला क्लास में जो हेक्सोज होगा ग्लूकोज पर, वो भी उतना इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चे, आज की डिस्कशन अब यहीं तक रखेंगे। आप अपनी प्रॉब्लम अब लिखो, डाउट्स लिखो। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। नंबर 1, अल्डोहेक्सोज और केटोहेक्सोज को आप लिखो, कन्वर्जन ऑफ अल्डोहेक्सोज एंड केटोहेक्सोज इन द रिंग। कन्वर्जन ऑफ अल्डोहेक्सोज एंड केटोहेक्सोज इन ए रिंग। देखिए इसमें क्या है, नीट में 11th 12th पास नहीं होना है, समझना है। शुरू में थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन बाद में उतनी तरह कंफर्टेबल हो जाएगा। तो आपने लिख लिया होमवर्क। पहले आप, मैं अगली क्लास में आऊंगा, यहाँ बना दूंगा। आप अल्डोहेक्सोज केटोहेक्सोज बना देंगे, अल्डोहेक्सोज को रिंग में कर देंगे, उसके बाद स्पीड पकड़ लेगी गाड़ी। अब आप यहाँ से रियलाइज कर रहे होंगे कि इसके बिना हम लोग जेनेटिक्स हम कैसे पढ़ेंगे, या पढ़ लिए होंगे तो कैसे पढ़ लिए होंगे, ये कॉन्सेप्ट नहीं आई होगी। कोई भी चीज सिलेबस से बाहर की नहीं है, दे आर रिलेटेड। एक चीज कई जगह रिलेटेड है आपका, और नीट में क्या होती है वो क्वेश्चन आ जाती है। अब जैसे एग्जांपल, अब छोड़ो इन बायोमोलिक्यूल्स की बातें हो गई, अब दूसरी एग्जांपल मैं आपको बताऊं। यू ऑल हैव हर्ड द नेम ऑफ माइकोराइजा। अब देखो माइकोराइजा, बच्चे आप जाओगे 11th में, पेज नंबर 22 पर भी आया है, पेज नंबर 38 पर भी आया है, पेज नंबर 185 पर भी आया है, 186 पर भी आया है, और 12th में भी 188 पर ग्लोमस आया है। तो जब आपको पता है तो सेटल को तो सारी मैटर पता है, जोड़ के बना देगा। तो इसमें कुछ नहीं है, ये है जो कॉन्सेप्ट, कोरिलेशन और क्विक। अब आप बात सुनो, क्विक
कोरिलेट करना है, करेक्ट करना है और क्विक करना है। तो करेक्ट और क्विक तभी होगी जब हमको कॉन्सेप्ट रहेगा। रट्टा मारेंगे आज, 1 घंटे में भूल जाए। तो फॉर योर इंफॉर्मेशन, यदि किसी के दिमाग में ये बैठा हो जो बायो रटने की चीजें हैं, तो 100% रॉन्ग है, एक्सेप्ट बायनोमियल नोमेनक्लेचर में जो नाम है वही। वो तो उनका नाम है, इसमें भी सबके नाम है। मैं अपना ही नाम आपसे पूछ लूं तो आपको देख के कुछ नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ नाम नाम को जानना है, अदरवाइज इवन मॉर्फोलॉजी इज अ मैटर ऑफ कॉन्सेप्ट। जो आपने एनिमल किंगडम पढ़ा है वो भी मैटर ऑफ कॉन्सेप्ट, उसमें 8 कॉन्सेप्ट है। 8 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा एनिमल किंगडम कमांड हो जाएगा, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं 8 चीज को कॉन्सेप्ट दूंगा, आपका एनिमल किंगडम आपके हाथ में हो जाएगा। तो इसको खत्म करके फिर हम आएंगे बच्चे, ठीक है। यदि आपके पास कोई क्वेश्चन हो, रिपीट, नो डाउट। मोसीना, क्या कौन सा चीज रिपीट कर दूं बच्ची? फातिमा, क्वेश्चन रिपीट करूं? वेरी गुड, लिख लो। ये तो नोट कर लिया ना? ये नोट कर लिया। दिक्कत है आपके, यहाँ बोर्ड दिख रही है, आगे काम अपना मोबाइल होगा, फोटो खींच लो। और आसान तरीका बता रहा हूँ, बाद में करते रहना। ये आपके मोबाइल पर या लैपटॉप पर आ रही होगी, फट से उसका पहले फोटो खींच के रख लो, फिर बाद में काम करते रहना, जल्दी काम निकल आएगा। यदि मैं सीधे आपको ऑन स्क्रीन डिस्प्ले कर दूंगा ना, तो फिर समझ में नहीं आती है सब चीज, इसलिए मुझे तो लिखना पड़ेगा। आप अपना काम आसान करने के लिए खींच लो, वर्क लिख लो, होमवर्क। Open and ring structure of aldolexols and ketoexols। यानी हमको मतलब होगा ग्लूकोज से एंड फ्रक्टोज। ये बस इतने करना है, बच्चे तो मैं सारे काम अपने साथ करा लूंगा। जनरली मैं पेंडिंग वर्क रखता ही नहीं। अब आप ये फील करो कि आपसे मैं आपका कॉपी ले लूं, कॉपी ले लिया, कहे बच्चे अब तो यहाँ से ट्रायोज से पेंटोज एक्सोज बना दो, तो आप जस्ट क्लोज योर आईज एंड थिंक, कैन आई मेक और नॉट? आई एम श्योर 99% ऑफ चिल्ड्रन कैन डू। थोड़ा सा बैठ के सोचेंगे, बन जाएगा। तो दिमाग में बैठना है क्वेश्चन, कॉपी पे नहीं। अब बच्चे ठीक है, होमवर्क मिल गया आपको? तो आज की कहानी बंद करता हूँ बच्चे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं टाइम पे। और अपने सामने में ये रखिएगा, पेंसिल 11th और 12th दोनों की बुक रखिएगा साथ साथ, नोटबुक के साथ साथ। एनसीईआरटी 11th, एनसीईआरटी 12th। अभी देखो हम पढ़ा रहे थे 11th, ये 12th से ही कोरिलेटेड था। तो सामने रहेगा तो आपको खुलवा दूंगा, आप देख लो। ठीक है भाई, ओके।